करते रहें। मैं ऑटो रिग्रेसिव मेथड के थ्रू ये वैल्यूज फाइंड आउट करने लगा हूँ रिमेनिंग जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन उसकी। अच्छा, आपने करना क्या है जी, जस्ट लेट मी शेयर अ न्यू स्लाइड विद यू पीपल। ये देखिए, मैंने ई व्यूज को ओपन किया। जैसे मैंने ओपन किया तो इसने मुझसे कहा कि जी क्या करना है आपने इस पे। तो आई एम जस्ट आस्किंग हिम टू क्रिएट अ न्यू ई व्यूज फाइल। इट मस्ट बी अपॉन योर कंप्यूटर, okay? And after double clicking upon that, you would come across with this type of window, right? So when you uh, click upon create a new work file, a file would come across in front of you like this, okay? तो इस तरह की फाइल आएगी, इसको बोलते हैं वर्क फाइल क्रिएट, ठीक है। ये वर्क फाइल स्ट्रक्चर टाइप आ गई। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टाइप में आ रहा है जी अनस्ट्रक्चर्ड, डेटेड, रेगुलर, फ्रीक्वेंसी एंड बैलेंस्ड पैनल। ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सैंपल जो है वेदर इट इज dated upon regular frequency, or whether it is an unstructured data, or whether it is a balanced panel. So I'm not talking about balanced panel, ठीक है। तो हमें अब देखना है कि जो डेटा जिसको हम देख रहे हैं whether it is arranged accordingly dates, or whether it is unstructured data. So let me open up that data file again for you people. Clicking upon a panel data, that is why this option is also not considered over here. So we are left with one option, and it is dated regular frequency. Okay. So our data is given against a regular date. Okay. So we would be selecting this particular option underneath work file structure type. Okay, so there are three types within work file structure. So we are gonna select dated regular frequency. Start date क्या है? Look at your data size. Look at Sure. the Excel file again. It is starting from 1976 and No, it is sir. ending at 2019. But I'm not taking my all data. I'm only going to take this variable. This is EPC and electricity power consumption, then per capita. The other one is energy use per capita. These two variables are starting from 1976, but these variables are ending at 2014. Okay, so I'm firstly gonna take these two variables. The third variable I'm not going to take. The reason is it is starting from this point. Okay, it is starting from 1990, right? So I'm not taking this variable with me into the work file. I'll be taking it afterwards. I've selected the whole data starting from 1976 until 2014. Okay. And I've selected the data along with the variable name. Got my point? तो मैंने डेटा को वेरिएबल नेम्स के साथ कॉपी किया है। 1976 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है 2014 पे। ओके, तो मैंने ये डेटा भी यहाँ से कॉपी किया है। अब आप देख सकते हैं ईव्यूज फाइल में वर्क फाइल स्ट्रक्चर टाइप में डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे आ गया। अच्छा, आगे उसके बाद है जी डेट स्पेसिफिकेशन। डेट स्पेसिफिकेशन में मेरे पास आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आप ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करते हैं, देखते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद मी। So I'm gonna ignore every option just to go for the option of annual. क्यों एनुअल पे आया हूँ? क्योंकि मेरा डेटा एनुअल बेसिस पे गिवन है। इट इज नॉट अ सेमी एनुअल डेटा, इट इज नॉट अ क्वार्टरली डेटा, इट इज नॉट अ मंथली, बाय मंथली, ठीक है, फोर्टनाइनटी। तो इसी तरह 10 डेज, 5 डेज, 7 डेज, डेली। सो इस तरह की ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरा डेटा एनुअल बेसिस पर
गिवन है, तो आई एम गोना सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑफ एनुअल ओवर हियर, ठीक है। अदरवाइज जो आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी होगी, इफ इट इज वीकली डेटा, if it is 10 days data, if it is bi-monthly data, monthly, quarterly, semi-annual, annual, or multi-year data, so you can select that option. But in my case, I'm gonna select annual data. Why I'm selecting frequency as annual? Because my data is available in annual basis. So the start date for my data is 1976 for the variables that I'm selecting, and the end time for the selected variable is 2014. Why I'm not taking it until 2019? The reason is such variables are not available until 2019. Okay, I've pressed it OK over here. तो अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको OK पे क्लिक किया, तो मेरे पास क्या आ गया थी ऑप्शन, 1976 से 2014, 39 ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है। और अभी मेरे पास डेटा यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। एक सी, यानी सी क्या जी, इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ये है जी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। सी, इंटरसेप्ट टर्म, कांस्टेंट नंबर। एंड व्हाट इज आर ई एस आई डी? इट इज यूज फॉर रेजिडुअल, ठीक है जी। रेजिडुअल की वैल्यू अभी गिवन नहीं, ओके। सो इट इज रेजिड। तो अभी जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। Okay, let me, this is the blank window. Within this window, I'm going to type or click and gonna type data, 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 right? When I click upon this blank window to type data and then I press enter, and you would have seen that a new file is, or a new window is opened for me. Okay, I've just maximized this window, ठीक है। इसमें आप, जहां मेरा कर्सर है यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन मेरी फर्स्ट सेल के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्रॉल अप किया और मैं चला गया फर्स्ट सेल में, ओके। तो अब मैं वापस एक्सेल फाइल पे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने ये दो वेरिएबल, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा एंड एनर्जी यूज पर कैपिटा, ये दो वेरिएबल्स को यहाँ से अलॉन्ग विद वेरिएबल नेम सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ से अगेन मैं अपनी ईव्यूज फाइल पर जाता हूँ, इस डेटा फाइल पर यहाँ आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर, क्या किया मैंने, यहाँ आके राइट क्लिक करके डेटा को पेस्ट किया, तो यूं मेरे पास डेटा 1976 से 2014 तक था। क्विक एस्टिमेट इक्वेशन, यहाँ मैंने फॉर्मूला टाइप किया, एनर्जी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा स्पेस इंटरसेप्ट टर्म स्पेस एनर्जी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा ब्रैकेट में -1, ठीक है। एंटर किया, ये इंफॉर्मेशन आई, इसमें इंटरसेप्ट टर्म और उसके लैग टर्म की, एनर्जी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा के लैग टर्म की वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया। ये पूछ रहा है टेक्स्ट कॉपी करना है, आई एम सेइंग ओके, नो इशू एट ऑल। कॉपी करके मैं फौरन इसको लेके चला गया एक्सेल फाइल पर, और एक्सेल फाइल में ले जाकर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट पेस्ट कर दी। आपने देखा होगा कि ये इक्वेशन आपको पता होगी ऑटो रिग्रेसिव, वाई टी इक्वल कांस्टेंट टर्म प्लस बी वाई टी -1, ठीक होगी बात। ये इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्ज करें इंस्टेड ऑफ टी, इफ यू वुड लाइक टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2015, आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म प्लस स्लोप कोफिशिएंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी की जगह 2015 -1
ठीक है जी, आप ये क्वेश्चन मेंशन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये 2015 में से एक साल कम कर दें। 2015 में से एक साल कम करेंगे, ये है वाई। राइट। तो आपने 2015 में से जब एक साल कम करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? 2014। कुछ इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए। तो वाई 2015 की वैल्यू कैसे आएगी? फॉर्मूला क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म प्लस ये वैल्यूज। ये मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपके लिए फर्दर ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसको देखना इजी हो जाए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वाई 2015 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? कांस्टेंट टर्म प्लस स्लोप कोफिशिएंट। अच्छा, ये है कांस्टेंट टर्म, कितनी है जी? 18.4617 और स्लोप कोफिशिएंट क्या जी? 0.969005। ठीक है जी। अब ये 2015 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? ईपीसी पर कैपिटा की। ईपीसी पर कैपिटा क्या है जी? ये वाला वेरिएबल, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। ठीक है। और हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसको मैं येलो शीट से सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेंगे इक्वल का साइन, सबसे पहले होगी जी ये कांस्टेंट टर्म, ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसके बाद होगी जी ये स्लोप कोएफिशिएंट, ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब किसकी वैल्यू होनी चाहिए जी? वाई 2014 में। जो वाई है 2014 में वो कौन सा है जी? ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 452.092479। ये ऑटो रिग्रेसिव मेथड फॉलो करते हुए 2014 के बिहाफ पे 2015 की वैल्यू को फोरकास्ट कर दिया। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगर मैं 2016 की वैल्यू फोरकास्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं जैसे ही अगली वैल्यू पे जाता हूँ, ये देखें जरा, तो वैल्यू इस पैटर्न से चेंज हो गई है। क्यों? क्वेश्चन ये है क्यों चेंज हुई है? ये इसलिए चेंज हुई है कि यहाँ पर देखें जरा गौर से। यहाँ पर इंटरसेप्ट टर्म उसने कौन सी रीड कर ली? ये जरा गौर से देखें, V38। V38 क्या जी? ये V है। ये 38 क्या आ रहा है जी आपके पास? ये 38 आ रहा है। ठीक है, ये 38 है V। ओके, ये V38 आ गया। तो यहाँ पर V38 हमारा इंटरसेप्ट टर्म तो नहीं, वो तो V37 है। तो हमने बेसिक एरर कहाँ कमिट किया? फॉर्मूले में हमने यहाँ एरर कमिट किया। क्या? हमने ये V37 को यहाँ पे फिक्स करना। आपने क्या करना है जनाब? V37, V से पहले भी यहाँ डॉलर साइन इम्पोज करना है, 37 से पहले भी डॉलर साइन इम्पोज करना है। ओके, तो व्हेन यू इम्पोज डॉलर साइन ओवर हियर, तो इससे क्या होगा? ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसी तरह ये स्लोप कोएफिशिएंट है, इस स्लोप कोएफिशिएंट में भी आपने वी से पहले डॉलर इम्पोज करना है और 38 से पहले डॉलर इम्पोज करना है। ठीक है जी। और ये जो 2014 वाली वैल्यू है ना, Q40 वाली, इसको आपने ओपन छोड़ देना। जैसे आप इसको ओपन छोड़ेंगे, क्यों छोड़ा ओपन? क्योंकि नेक्स्ट सेल में 2016 के लिए वो 2015 की वैल्यू को रीड करेगा। अब जरा गौर से देखिए, ये आ गया ना उसी पैटर्न पे वेरिएबल, उसी पैटर्न पे डेटा आया 456.541643। अच्छा, इसमें आप जरा गौर से देखें, 37 और 38 फिक्स है। 40 की जगह क्या आ गया जी? Q40 की जगह Q41। Q41 क्या है जी? ये देखें, ये Q41 की वैल्यू है, ये देख रहे हैं आप, ये 41। ठीक है। इसके बाद एंड सो ऑन, इसको ड्रैग कर दें, बाकी वैल्यूज एज इट इज ये रीड कर लेगा। हमारे पास एनर्जी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अब चलते हैं एनर्जी यूज पर कैपिटा की तरफ।
ले जी, दोबारा मैंने ईव्यूज की वर्क फाइल आपसे शेयर की है। इसको मैं अब दोबारा एस्टिमेट में आके यहाँ से मैं एनर्जी पावर कंजम्पशन की जगह चेंज करने लगा हूँ एनर्जी यूज पर कैपिटा, ईयू पर कैपिटा। ठीक हो गई बात। तो जैसे ही मैंने एनर्जी यूज पर कैपिटा किया, तो मेरे पास आप देख सकते हैं एक न्यू विंडो डेवलप हुई है, उसके अंदर ये कांस्टेंट टर्म और साथ एनर्जी यूज पर कैपिटा का स्लोप कोएफिशिएंट आ गया। क्लियर। इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको भी मैं एक्सेल फाइल में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसको मैंने एक्सेल फाइल में आके पेस्ट कर दिया। और इसके लिए भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं। बल्कि इसको हम इन्हीं दो सेल्स में रखते हैं ताकि हमें ज्यादा इशू ना हो। और सेम इसका भी फॉर्मूला यही है, इक्वेशन यही हमने यूज करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ जी ऑरेंज। ठीक है जी। अब देखें इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, ये कांस्टेंट टर्म आ गई जी किसकी, एनर्जी यूज पावर कंजम्पशन की, एनर्जी यूज पर कैपिटा की, सॉरी, एनर्जी यूज पर कैपिटा का इंटरसेप्ट टर्म प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एनर्जी यूज पर कैपिटा का स्लोप कोएफिशिएंट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एनर्जी यूज पर कैपिटा की वैल्यू 2014 के अंदर ये। ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने आपको कहा था आपने इंटरसेप्ट टर्म के स्टार्ट और सेंटर में डॉलर साइन प्रेस करना है। इसी तरह स्लोप कोएफिशिएंट के लेटर से पहले और नंबर से पहले डॉलर साइन प्रेस करने के बाद ओके किया तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई एंड इट इज क्लोजर टू द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है। अगले साल की वैल्यू देखें, अगेन नियर टू द प्रीवियस ईयर्स वैल्यू एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात। ये हमारे पास दो डेटाज आ गए। इसको हम किसी और कलर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। दो वेरिएबल सिलेक्ट हो गए। तीसरा वेरिएबल हमारे पास है एनर्जी इंटेंसिटी लेवल। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये डेटा मैं यहाँ से 1990 से ऑनवर्ड अवेलेबल है अंटिल 2015। ठीक है। इसको यहाँ से किया कॉपी। ये मेरे पास फाइल है ईवी, उसकी फाइल में आए, न्यू में आए, वर्क फाइल। ओके। तो ये एक सब विंडो ओपन होगी। इसमें डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी ओके, स्टार्ट टाइम है 1990, एंड टाइम है 2015 एंड देन प्रेस ओके। 1990 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, 2015 तक जा रहा है, 26 साल की ऑब्जर्वेशन। डेटा कमांड विंडो में जाके टाइप किया, एंटर, और फर्स्ट सेल में आ गया स्क्रॉल अप कर। डेटा एक्सेल से कॉपी किया था, फर्स्ट सेल में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये आ गया एनर्जी इंटेंसिटी लेवल का डेटा। क्लोज किया जी इस विंडो को। क्विक, सॉरी, क्विक एस्टिमेट इक्वेशन हियर, एनर्जी इंटेंसिटी लेवल स्पेस सी स्पेस एनर्जी इंटेंसिटी लेवल विद इन ब्रैकेट -1, एंटर, एंड यू कुड जस्ट सी दैट कि ये हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म और स्लोप कोएफिशिएंट आ गया। ये इंफॉर्मेशन कॉपी की, देन आई टेक दिस इंफॉर्मेशन टू न्यू वर्क फाइल। ठीक है जी। इस वर्क फाइल में आके क्या किया मैंने,
आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट टर्म प्लस ब्रैकेट स्टार्ट स्लोप कोएफिशिएंट ब्रैकेट क्लोज, then multiplicative sign, then again bracket start and previous value of EIL। ठीक है जी। और इसी तरह इंटरसेप्ट टर्म को फिक्स कर लिए, इसी तरह स्लोप कोएफिशिएंट को फिक्स कर लिए एंड देन प्लस एंड, और ये सारी फर्दर वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इसमें ट्रेंड जो है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो आप ऑब्जर्व करें जी, ओवरऑल एनर्जी इंटेंसिटी का ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा कि फॉल कर रहा है। 5.11, 4.94, 87, 87, 77, 66, 58, 53, 42, 32 एंड सो ऑन। क्लियर। इसी तरह एनर्जी इंटेंसिटी की अगर नेक्स्ट ईयर वाली वैल्यूज फोरकास्ट हो सकती हैं, तो पीछे से भी कुछ वैल्यूज इसी पैटर्न पर इंट्रापोलेट भी हो सकती है। ये देखिए, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखें जी वाई टी माइनस सी इक्वल बी वाई टी, सॉरी बी वाई टी माइनस वन। ओके, अगली इक्वेशन क्या बन गई, ये इसी इक्वेशन को यूज मैंने किया जी। क्या किया, ये सी इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो गया। अच्छा, उसके बाद वाई टी माइनस वन, अब ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर क्या आ गया जी, वाई टी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ये बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्लोप कोएफिशिएंट। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन गई। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई प्रीवियस ईयर। आप आसानी आप कर क्या सकते हैं, आपको वैल्यू चाहिए लेट टी इक्वल 1980। ओके, तो यहाँ पर वाई टी माइनस वन क्या हो गया जी, 1980 माइनस वन इक्वल वाई 1980 माइनस टी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है जी। तो अगली इक्वेशन क्या बन गई, अगर आपको 1980 यानी वन माइनस करेंगे तो 79 हो जाएगा। ठीक होगी बात। वाई 1979 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी अब आपने अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ये पुट कर देता हूँ, फर्ज करें यहाँ से मैं 2 साल पीछे जाना चाहता हूँ या 3 साल पीछे जाना चाहता हूँ। ये आपने ज्यादा इंट्रापोलेट या एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना, आप बस 1 से 2 3 मैक्सिमम 3 साल तक रहना है, इससे आगे नहीं जाना आपको। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट की, मुझे क्या चाहिए जी यहाँ पे, करंट वैल्यू, यानी करंट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 1990 की है। ठीक है जी, माइनस, आगे क्या आ रहा है जी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसकी कौन सी थी, ये है एनर्जी इंटेंसिटी की, ये आ गई। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या जी, स्लोप कोएफिशिएंट, ये देख रहे हैं आप, ये स्लोप कोएफिशिएंट आ रहा है। तो एनर्जी इंटेंसिटी का स्लोप कोएफिशिएंट क्या जी, ये। ठीक है, तो अब ये स्लोप कोएफिशिएंट सेलेक्ट हो गया, इसको क्लोज कर दिया। अब आपने करना क्या था, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको फिक्स कर लें, अपने स्लोप कोएफिशिएंट को फिक्स कर लें। ये आपके पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू आ गई 5.48371701, और ये देख लें आपके इससे क्लोज ही है। इससे प्रीवियस ईयर की वैल्यू देखें, ये कैलकुलेट होगी
इससे प्रीवियस ईयर की वैल्यू देखें, ये कैलकुलेट हो। इससे प्रीवियस ईयर की वैल्यू देखें, ये कैलकुलेट हो। 4 साल आगे की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, 4 साल प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, 545250 548, सेम पैटर्न चल रहा है, आगे सारा फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ आके थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज की है, बट ये इसी पैटर्न पर पूरी होगा। 4 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका डेटा हमने थोड़ा सा मैनेज किया। ठीक है, इनमें जो ये वाले वेरिएबल्स हैं, इनके आखिरी मेरे ख्याल है 5 5 साल में हुए हैं, इनको आप हाईलाइट कर लें। इसके 4 साल हुए हैं। ठीक है, और लेबर फोर्स के और एनर्जी इंटेंसिटी के फर्स्ट 4 ईयर्स भी। तो अब स्टार्टिंग ईयर हमारे पास क्या आ गया जी, ये स्टार्टिंग ईयर आ गया 1986। ओके, तो कम से कम हमारे पास 30 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन मौजूद है। तो जिन डेटा को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, उनकी वैल्यूज को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि हमें याद रहे कि हमने इन वैल्यूज को खुद कैलकुलेट किया। तो ये वाली वैल्यूज के बारे में आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक्नॉलेज करना है कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल फॉर दीज स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, डू मेंशन दीज type of information or steps in your document so that you may acknowledge that something that you are doing, you are not hiding that information from the reader. क्योंकि whenever somebody, anyone who has an expertise upon this particular data, he would raise a question that these informations are not available into the original source. How have you found these information or this missing information? So what you would be saying over there, once you have acknowledged, तो फिर डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को आप यानी टैकल कर सकते। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं आपके साथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोचेस पे जा रहा हूं। अभी हमने रिलेटिव फॉर्म देख ली, अब मैं जाने लगा हूं 4 अप्रोचेस की तरफ। नॉमिनल रियल वाला काम हमने कर लिया। ठीक है, वो अप्रोच हो गई, रिलेटिव फॉर्म वाली हो गई। अब हम जाने लगे हैं लॉग फॉर्म पर, डिफरेंस फॉर्म पर और ग्रोथ रेट फॉर्म पर। ठीक है, रेफरेंसेस यहाँ पर लिए जा। चलिए, ईयर्स वाला कॉलम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, डिफरेंस लेने का तरीका क्या होता है जी, आप आपका जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है ना 76 की, 76 की डिफरेंस वैल्यू उस वक्त आएगी जब आपके पास 75 की वैल्यू। अदरवाइज आप 76 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब मैं क्या करने लगा हूँ, 77 की डिफरेंस वाली वैल्यू फाइंड आउट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं जा रहा हूँ सीपीआई के कॉलम में। सीपीआई के कॉलम में 77 के सामने ये वैल्यू, इसको सिलेक्ट किया, माइनस का साइन प्रेस किया, एंड देन 76 की वैल्यू को सिलेक्ट किया। सो 77 माइनस 76 आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई कुछ 77 की डिफरेंस वाली फॉर सीपीआई। अब इसके बाद देखें, इसी तरह ये वैल्यू को राइट साइड पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। मेरे पास सब वेरिएबल्स के डिफरेंसेस की वैल्यूज आ गई। इसी तरह इसको मैं डाउनवर्ड स्क्रॉल कर लेता हूँ। अच्छा, आखिरी 3 की वैल्यूज, इस आखिरी 2 की इसलिए नहीं आई कि उनका डेटा 1990 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें, एनर्जी इंटेंसिटी और लेबर फोर्स का डेटा 1990 कह रहा हूँ, 1986 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाली वैल्यूज नहीं फाइंड आउट होंगी। द रीजन इज कि यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है। ये देखिए, जहाँ पर ब्लैंक इंफॉर्मेशन है, ये देखें, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इससे आगे आगे वाली वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ये वाली।
ये देखें यहाँ पे भी ब्लैंक उसने दिया हुआ। क्यों दिया हुआ ब्लैंक? द रीजन इज कि इस वैल्यू से प्रीवियस वाली वैल्यू जो है ये गिवन नहीं है। अगर ये गिवन होती तो ये वैल्यू 86 वाली आ जाती, तो 87 से ऑनवर्ड डिफरेंस वाली वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच। अगर आपने अगेन डिफरेंस लेना है तो अब आप इस डेटा के ऊपर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस फॉर्म अप्रोच। लें, अब ये जहां जहां डी था वहां वहां मैंने जी से इसको चेंज कर दिया। ग्रोथ रेट में क्या होता है? ग्रोथ रेट में होता वही है जो डिफरेंस में होता। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हम सबको मालूम है कि हमने क्या करना होता है, इक्वल का साइन करंट वैल्यू में से वाई टी में से माइनस करते हैं प्रीवियस वैल्यू और इसको डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस वैल्यू। ठीक है जी, जो आंसर आ जाए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट का। सही होगी बात। ग्रोथ रेट ऑफ एनी वेरिएबल कैन बी फाउंड बाय, फर्स्टली ये देखे ना टॉप वाला जो है ये क्या है, डिफरेंस है। इसको अगर प्रीवियस वैल्यू यानी ये जो डिफरेंस अप्रोच है, अगर इसको प्रीवियस वैल्यू पर सीपीआई की 76 वाली वैल्यू पे डिवाइड कर दे तो ये सीपीआई का ग्रोथ रेट, और 100 से मल्टीप्लाई कर दे सीपीआई का ग्रोथ रेट निकल आएगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट में ये बेसिकली काम हो रहा है। तो करना क्या है इसमें, ये देखें इक्वल का साइन, अब ये देखें 77 की वैल्यू माइनस 76 की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 76 की वैल्यू बी टू सेलेक्ट की, और इक्वल से इक्वल के बाद 100 का साइन प्रेस किया और ये मल्टीप्लाई कर। फॉर्मूला देख लें, इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय करंट वैल्यू कौन सी है 77 की बी थ्री माइनस प्रीवियस वैल्यू बी टू 76 वाली वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू जो कि बी टू है। अब इसको यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास सीपीए का ग्रोथ रेट कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई इसकी। 76 वाली वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, और इसी तरह इसको डाउनवर्ड स्क्रॉल कर तो आपके पास ये ग्रोथ रेट से सबकी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? और ये वैल्यूज आपको अगेन इसलिए नहीं मालूम हो सकती क्योंकि इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है। अब इसके बाद है हमारे पास लॉग फॉर्म अप्रोच, वो ये है। अच्छा जी, अब हमारे पास जहां जहां जी आ रहा है उसके स्टार्ट में हम मेंशन कर देते हैं जी की जगह नेचुरल लॉग एल एन। ये सब वेरिएबल्स के स्टार्ट में जी की जगह पर एल एन लगा दिया और ये सारा डेटा यहाँ से उड़ा दिया। ठीक है जी, अब हमने नेचुरल लॉग फाइंड आउट करना है। यहाँ सिंपली इक्वल का साइन दें, एल एन टाइप करें, ब्रैकेट स्टार्ट, और स्टार्ट करते ही यहाँ पर 1976 की जो इंफॉर्मेशन है वो सब्सटीट्यूट करें। जैसे ही 1976 की इंफॉर्मेशन सब्सटीट्यूट करेंगे, जस्ट प्रेस एन एंटर साइन ओवर हियर, तो आपके पास ये नेचुरल लॉग आ जाएगा इक्वल। आप देख सकते हैं जी। तो इसको राइट वर्ड एक्सपैंड कर लें और इसी तरह इसको नीचे भी ड्रैग कर लें, राइट वर्ड ड्रैग कर लें और डाउनवर्ड ड्रैग कर लें, आपके पास पूरे डेटे का नेचुरल लॉग आ जाएगा।
जो आपकी रिलेटिव फॉर्म अप्रोच है उस पर आगे फर्दर अप्रोचेस अप्लाई होंगे, उन पर आप डिफरेंस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उन पे आप ग्रोथ रेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उस पर नेचुरल लॉग फॉर्म अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। तो लेट्स मूव टू रिव्यूज फाइल। इसमें आप देख सकते हैं, आई हैव just let me do it for you people again. I've opened up a file of reviews. From there, I've gone to file menu. From file, I'm going to new, and from new, I'm clicking upon work file, right? So once I click upon work file, so this window appears to me. Work file structure is again dated regular frequency. Data specification frequency is annual. Start date is 1986. Why it is 1986? The reason is कि हमारे पास जो डेटा है एनर्जी इंटेंसिटी का, और इसके अलावा जो लेबर फोर्स टोटल है उसका डेटा, वो फ्रॉम 1986 अवेलेबल है। ठीक है, अदरवाइज वी वुड हैव स्टार्टेड। चलें इस तरह करते हैं, सारा सैंपल ले आते हैं, वो दो वेरिएबल्स को 1986 से फ्रीज कर रहे हैं, 1976 एंड देन 2019। ओके, 44 ऑब्जर्वेशन है। देन कमांड विंडो में जाके टाइप किया जी डेटा, एंटर। फर्स्ट सेल में जाके यहाँ से डेटा कर रही है कॉपी, और फर्स्ट सेल में जाके डेटा कर दिया paste। कौन सा, लॉग वाला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंसी और लेबर फोर्स का ये डेटा हमारे पास 1986 से अवेलेबल है, और इसी की वजह से मैं सैंपल 86 से स्टार्ट करने लगा। लेकिन जहाँ ये दो वेरिएबल्स यूज करेंगे वहाँ हम डेटा अपना 1986 से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ ये वेरिएबल्स नहीं यूज करेंगे वहाँ डेटा हमारा 76 से चलेगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। अच्छा, अब आप आ जाएं अपने उस मॉडल पर, जो मॉडल उस आर्टिकल में हमें गिवन था। वो जर्नल है, एमडीपीआई के अंडर है, वेयर दिस आर्टिकल इज पब्लिश्ड, और इसका सैंपल पीरियड is starting from 1990 until 2015, and it is a case of Pakistan, right? So let me, and the method this article has applied is ADF and Philip Parent for unit root testing, and then co-integrated. It's not mentioned here that which co-integration method is being applied. We're finding, okay. Then Granger causality test was applied. Okay, so let's go on to the model of the study. So it is, yes, here we go. Here is the model. GDP is a function of energy supply, then capital, then investment, and then exports, right? Yes, sir. So let's slightly modify this particular functional form. How do we modify this functional form? Uh, the basic variable related to this uh, article or this function is missing, which is labor and capital. So experts are of the view that whenever you are taking GDP as a dependent variable, two independent variables must be there. Two independent variables must be there, and these should be labor and capital. Beyond labor and capital, you can incorporate some other factors of GDP, and just do not ignore these two variables. ठीक है जी। तो ये इसी तरह ही है कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं और आप वजू नहीं कर रहे, तो ये एग्जैक्टली इसी तरह ही है जब आप जीडीपी का फंक्शन रिग्रेस करें और लेबर और कैपिटल को आप इग्नोर करें। सो विदाउट इग्नोरिंग लेबर एंड कैपिटल, यू हैव टू टेक अप अ प्रोडक्शन फंक्शन।
ठीक है। एंड बियॉन्ड दिस जो और फैक्टर्स आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं वो जरूर करें, बट कीपिंग थ्योरी इन योर माइंड। ठीक है। अब नाउ let me share this screen. So we have come up with the view that the GDP per capita is our dependent variable, but unfortunately, since we have GDP is our dependent variable, but here we have taken data from 1976. तो अब मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा चेक करना है, क्योंकि डेटा हमें 1986 से चाहिए। द रीजन है, क्या रीजन है जी? रीजन ये है कि हमने लेबर को यूज करना है। पहले आई वाज थिंकिंग कि हमने लेबर यूज नहीं करना, जहां जरूरत होगी वहां करें। तो 1986 until 2019, okay, so we have 34 observations for us with us। और अब ये कमांड विंडो पे जाके टाइप किया है डेटा, प्रेस एंटर और फर्स्ट सेल में चलेंगे। अब क्या करें जी? एक्सेल फाइल में जाते हैं। ठीक है। यहाँ हमारे पास डेटा है 1976, बट वी रिक्वायर डेटा फ्रॉम 1986। तो मैंने न्यू फाइल, वर्क फाइल में जाके, एक्सेल फाइल में जाके डेटा को दोबारा पेस्ट किया। एंड इसमें मैंने ये वेरिएबल नेम्स यहाँ से, बल्कि ये सैंपल, मैंने डेटा यहाँ से कॉपी करके न्यू फाइल पे आके पेस्ट किया। और यहाँ से 76 से ऑनवर्ड 86 85 तक का डेटा रिमूव कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम 86 एंड ऑनवर्ड आई एम टेकिंग माई डेटा। ओके, I have copied my data from 1986 for all variables until 2019, and now I'm gonna paste it into the eViews file। ये देखिए, मैंने eViews फाइल में डेटा पेस्ट कर दिए। ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया क्रॉस। अब आपने क्या करना है? आपने आपके लैपटॉप पर कंट्रोल का बटन या आइकन नजर आ रहा होगा। जस्ट क्लिक अपॉन कंट्रोल। ठीक है जी। कंट्रोल को आपने प्रेस रखना है, इस डू नॉट रिलीज कंट्रोल बटन। नाउ क्लिक अपॉन जीडीपी पर कैपिटा, फिर लेबर फोर्स, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। लिसन माय वर्ड। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल को प्रेस कर ले, क्लिक ऑन जीडीपी पर कैपिटा, डू नॉट रिलीज कंट्रोल बटन, डू प्रेस इट, कीप प्रेसिंग इट। फिर लेबर फोर्स, फिर जीडीपी, सॉरी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद ये हो गए वेरिएबल्स। अब आपने एनर्जी यूज और एनर्जी पर कैपिटा, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। और एनर्जी इंटेंसिटी, इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल एक वक्त में आपने यूज करना है। फॉर इंस्टेंस वी आर गोना यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पावर कंजम्पशन पर कैपिटा। इसको यूज कर लेते हैं वन बाय वन करके। देन हम रेमिटेंसेस यूज कर लेते हैं, और इसके अलावा हम यूज कर लेते हैं एफडीएस। ठीक है जी। अब आपने कंट्रोल रिलीज करके राइट क्लिक करना है इस सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन पे। ओपन एज ग्रुप किया तो ये देखें, ये मेरे पास वेरिएबल सेलेक्ट हो गया। जीडीपी, लेबर फोर्स, कैपिटल, ईपीसीपीसी, ईपीसीपीसी, रेमिटेंसेस एंड एफडीएस। व्यू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दोबारा देख लें, ये सैंपल ओपन हुआ। इसके व्यू में आना है, ये कर्सर जहाँ पे मेरा है इसको देख, प्रेस ऑन व्यू। इसमें ऑप्शन नंबर 5 है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जस्ट क्लिक अपॉन इट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द ऑप्शन। आपने इसको कंट्रोल और करके कॉपी कर लिया।
and just open up a new Word file. Okay, let me open up a new Word file so that I can paste my result over there. Or on this Excel sheet, I can not Excel sheet. I must okay on a Excel sheet. Let's paste our results over. So the results are pasted over here. Okay, so we have pasted our results into eViews file. Sorry, into Excel file. आप यही results अपने जहां आप मुनासिब समझे आप वहां इसको पेस्ट कर सकते हैं वर्ड फाइल पे जिधर आपने अपने टेबल्स को सेव करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है जी दोबारा हम जाते हैं जी eViews फाइल पर। ओके, अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया है। नाउ जस्ट क्लिक अपॉन व्यू and then after descriptive statistics now you can find out the table for coefficient of correlation. So right below the descriptive statistics option, there is an option of covariance analysis. Okay, just click upon covariance analysis option. Once you click upon it, then you would come across with certain information. Just uncheck the option of covariance, check the option of correlation, and leave the other information as it is, and then press OK. What I've said is that you need to go to the view table of coefficient of correlation, right? Select all. After selecting all, copy this table and then paste it into your Excel file, which is this file. Now let's paste this information over here. So this is a new table, which is a table of coefficient of correlation. So this is a new table. Acha, what is we need to take care into these tables? अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं किसकी? जेरक बीटा टेस्ट, राइट? इफ if the probability value for all the Jarek Bira tests for all variables is insignificant, क्या हो जी? इनसिग्निफिकेंट हो तो इनसिग्निफिकेंस का कैसे पता चलता है हमें? इनसिग्निफिकेंस का हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका क्राइटेरिया क्या है? यू हैव टू लुक एट द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज if they are 10% or above, like if they are equal to or greater than 10%. From 10% we mean the probability value should be 0.1 or above, right? If the probability value is 0.1 or above for all the variables in case of Jarek-Beagle test, then all variables will be called as normally distributed variables. Yani variables which are following a normal distribution must have an insignificant Jarek-Beagle test. So while handling your data, it must be mentioned or it must be found that all of the variables or approximately maximum number of variables are normally distributed. ठीक है जी? तो यानी वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब फॉलो करेंगे तो उसको उसका कैसे पता चलेगा? उसका पता ऐसे चलेगा कि जैरक-वीरा टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होंगी आपके इन सब वेरिएबल के लिए वो क्या हो जाएंगी? इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, हमारे इस केस में आप एफडीआई के केस में देख सकते हैं। इन केस ऑफ एफडीआई द वैल्यू फॉर जैरक-वीरा टेस्ट इज
is less than 0.1, राइट, ये 0.09 अप्रोक्सीमेटली 0.1। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन पर कैपिटा, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, सिग्निफिकेंट आ, यानी ये अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली नहीं, 5% पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने क्राइटेरिया क्या रखा जी, 10%। तो 10% पर ये सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज 0.1 से लेस है, यानी ये 0.07 है और ये 0.09 है। तो इन दोनों केसेस में ये दो वेरिएबल जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर। फिर क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो कोशिश करें अपने मॉडल के अंदर उन वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करें विच आर फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Variables which do not follow normal distribution, they should not be a part of your model, right? So this is the solution. अच्छा, अब uh, if a problem arises with us that we do not want to exclude these variables from our functional form, from our model, then what is the solution? Then, in that case, what you need to do, just apply, just regress your table, yani regress the further results, and if you find that all of the other diagnostics are clear, if all important diagnostics are being passed through their, certain values, then you would say that okay, the model is fine. If not, then first step is to ignore these two variables and use alternate proxies instead of using these variables, right? Acha, one question arises here. When we have taken this capital with us, what's the need for using this foreign direct investment? Probably this would be a gross capital and it is incorporating the role of FDI probably, right? So we need to check out the definition of gross fixed capital formation, that whether it includes the domestic and foreign investments within it, or whether it is the value excluded then, or other than FDI's value, right? So firstly, we need to check out its definition, right? And if it is a gross fixed capital formation, keeping into account the value of foreign direct investment, then there is no need to take a separate variable as FDI when you have already taken a gross factor over here, right? So when a gross factor for investment is already taken, which includes both domestic and foreign investment, so there is no need to take foreign investments as a separate variable, right? So this is the first justification that I believe I should give to you people. It can be wrong, but the point is, one logic comes to my mind to share with you कि ये possibility हो सकती है कि when investment related variable is already into our model, then why we should be thinking to take this particular variable. ठीक है? If it would have been if it would have been an insignificant factor over here, then we should not go for exploring reasons that why it is a part of the model, right? वो फिर हमने आगे चल के देखना था कि आगे कहीं इनकन्वीनियंस या इनसिग्निफिकेंस या इस तरह का कोई इशू हमें नजर आता, सो देयर वी नीड टू रेज आवर अलार्म्स दैट दिस इज द इशू, वी नीड टू रीथिंक दिस पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है? तो अभी इस केस के अंदर जहां हम अभी फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं, यहाँ हमें यहाँ ही क्वेश्चन मिल गया, ठीक है? तो अगर तो आपने यहाँ इसको ठीक करना है तो कर लें, अगर आप समझते हैं कि आगे जाना है तो आगे चले जाएं, आगे जाके सारे डायग्नोस्टिक स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएं, तो जहाँ इश्यूज नजर आएंगे तो सबसे पहले इन दो फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना, ठीक होगी बात? अच्छा, अब टेबल 2 में हमने फर्स्ट कंपोनेंट इसका चेक किया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया, अब इसके अंदर भी इशू आ रहा है, ठीक है? ये टेबल के अंदर कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल इनकॉर्पोरेट नहीं करते जब भी आपने ये वेरिएबल, क्योंकि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तो लेट मी डू इट फॉर यू पीपल अगेन, ठीक है जी? यहाँ पर ये वाला ये वाली विंडो मैंने
क्रॉस की है, इसमें से मैं जीडीपी को एक्सक्लूड करने लगा हूँ। ये देखिए, ये जीडीपी को एक्सक्लूड कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके कर, बगैर कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो सब वेरिएबल्स अनसेलेक्ट हो जाए। अच्छा जी, सिलेक्टेड वेरिएबल्स पे जाके मैंने ओपन एज ग्रुप अगेन किया। ये डेटा मेरे पास ओपन है, व्यू में जाके उसी तरह कोवेरियंस एनालिसिस पे कोवेरियंस को अनचेक करके को रिलेशंस को चेक किया, प्रेस ओके, और उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लिया और एक्सेल पर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। राइट, तो यहाँ जब आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी, यहाँ आकर जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का टेबल आ जाता है। ठीक हो गई बात। अब इस टेबल को, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मुझे यहाँ पर चाहिए इसके साथ साथ वीआईएफ का टेबल। ठीक है, तो ये इकट्ठा ही टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल टू है मेन, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसको टू ए कह लें। ठीक है, एक टेबल जनरेट करते हैं टू बी। एक टेबल जनरेट करते हैं टू बी, इसका नाम रख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, पे इसको क्या देते हैं वीआईएफ मैट्रिक्स, वेरिएंस इन्फ्लेशन मैट्रिक्स। राइट, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर मैट्रिक्स, वीआईएफ। राइट, okay, so this is second table. Now let's copy the variable name. I can see there would be an issue into any variable. No, there is no issue, I guess. नहीं, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है जी इक्वल 1/1 माइनस आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? Coefficient of correlation is represented with r, right? This is r. So by for taking square we need to multiply this variable with again this. So 1/1 minus r square, right? So formula is for VIF formula is 1 divided by 1 minus small r is to power 2, right? So VIF formula is and coefficient of correlation equals small r, right? Coefficient of correlation is small r. So this is basically small r. Coefficient of correlation is basically small r. Got my point? So how would you be calculating its value? You need to divide 1 upon 1 minus r square, right? So you need to calculate VIF by using this formula, 1 divided by 1 minus r square. Okay, and then scroll to the right side, drag to the right side and drag to the down. Okay, now look at the values. फर्स्टली ये आप जरूर चेक करें कि ये लेबर फोर्स है और ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इनकी वैल्यू क्या है -0.89। ठीक है, और ये टॉप पे लेबर फोर्स है, ठीक है, ये वाला, और ये है कैपिटल, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -0.8909। ये वैल्यू
और ये वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक वक्त में एक वैल्यू रहनी चाहिए। इसी तरह ये 9 1 ये वाली वैल्यू देखे और ये वैल्यू देखे, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आर की वैल्यू अगर आप ए बी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, यानी आर होगा किसके लिए, वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे ना आर की, वो हमेशा इक्वल होगी उस आर के जिसमें आप वैल्यू निकालेंगे वाई एक्स मेथड से। यानी एक इक्वेशन है जिसमें एक्स डिपेंडेंट है एंड वाई इंडिपेंडेंट, और दूसरी इक्वेशन है जिसमें वाई डिपेंडेंट है एक्स इंडिपेंडेंट। तो आर की वैल्यू एक्स वाई मेथड से कैलकुलेट कर लें या वाई एक्स मेथड से कैलकुलेट कर लें, इट रिमेन सेम, द वैल्यू इज नॉट डिफरेंट। तो फिर हमें एक वक्त में एक वैल्यू रिक्वायर्ड होती है इन दोनों में। तो मैं राइट हैंड साइड वाली इंफॉर्मेशन सारी जितनी है वो एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक होगी बात? तो जब ये एक्सक्लूड कर दी है तो मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। द रीजन इज इट इज रिपीटेड, राइट? तो इसलिए इनको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप बासानी देख सकते हैं कि वीआईएफ की वैल्यू के लिए बेंचमार्क क्या है। वीआईएफ की वैल्यू के लिए बेंचमार्क ये है कि जनाब इसकी वैल्यू शुड नॉट बी 10 और अबव। ठीक होगी बात? इफ द वैल्यू ऑफ वीआईएफ इज 10 और अबव, देन we say that the two variables are significantly correlated to each other. Two variables are significantly correlated to each other in case when the value of VIF for such variables are 10 or above. हमारे इस केस में देख लें 4.85, 6.15, 1.63, 1.24, 2.62, 1.42, 1.05, 1.16, 1.75, 1.00। तो इसका मतलब है किसी फैक्टर के केस में वीआईएफ की वैल्यू 10 और अबव नहीं है, लाइक बिलो द 10 है। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड, meaning that there is an absence of multicollinearity issue into this model. Got my point? So there is no evidence of multicollinearity between these variables, right? अच्छा, आज के लेक्चर को मैं इन दो टेबल्स के ऊपर कंक्लूड कर रहा हूँ। रिमेनिंग डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे।